بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس، چوتھی صلیبی جنگ کی المناک داستان، ایپیسوڈ نمبر 10۔ سلطان رکن الدین اپنی خلوت گاہ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کا حاجب اندر آیا۔ سلطان سے اس نے سلام کہا، پھر اس کمرے میں حاجب کی آواز گونجی تھی۔ سلطان محترم امیر سیف الدین اور امیر ترنیتائی اور امیر حسام الدین تینوں اس وقت آپ کی خلوت گاہ کے باہر کھڑے ہیں اور آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ شاید وہ کسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس حاجب کی اس گفتگو پر سلطان چونک جانے کے انداز میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر حاجب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ ترنیتائی کب قاہرہ میں داخل ہوا اور اسے باہر کیوں روکا گیا ہے؟ اگر وہ تینوں مجھ سے کسی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو فوراً انہیں اس کمرے میں بھیجو۔ خصوصیت کے ساتھ ترنیتائی کو نہیں روکنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں نے اسے ایک انتہائی اہم مہم پر روانہ کیا تھا۔ بہرحال تم جاؤ اور ان تینوں کو فوراً اندر بھیجو۔ اس کے ساتھ ہی حاجب سلطان رکن الدین کو تعظیم دیتا ہوا اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں سیف الدین، ترنیتائی اور حسام الدین داخل ہوئے۔ تینوں نے سلطان سے سلام کہا۔ سلطان نے بڑے پرجوش انداز میں ان کے سلام کا جواب دیا۔ تینوں سے باری باری مصافحہ بھی کیا، پھر خالی نشستوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ باری باری بیٹھ گئے۔ سلطان بھی اپنی نشست پر بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے ترنیتائی کو مخاطب کیا، ترنیتائی میرے بیٹے، تم کب لوٹے؟ اور یہ کہ جس مہم پر تم روانہ ہوئے تھے اس کے متعلق مجھے تفصیل سے کہو۔ جواب میں ترنیتائی بول پڑا اور کمرے میں اس کی آواز گونجی، سلطان، الکرک میں آپ سے جدا ہونے کے بعد میں بلفورٹ کی طرف گیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلفورٹ کا حکمران برالون مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ میں نے ایک شب وہاں قیام کیا تھا، پھر میں کیسریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان محترم، جس وقت میں بلفورٹ پہنچا تو اس وقت بلفورٹ کے حکمران برالون کے پاس منگولوں کے لشکریوں کا سالار یسرک اور 2 باطینی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے وہاں موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتے کہ منگول اور باطینی ہمارے خلاف عیسائی دنیا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سلطان، وہ جو 2 باطینی اور برالون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خدمات برالون نے مجھے قتل کرنے کے لیے حاصل کی تھی۔ برالون اور اس کے لواحقین کو ابھی تک خبر نہیں کہ دمشق کی بشیت کے علاوہ بلفورٹ کے بشیت پادریوں اور اس کے نائب سپہ سالار کو میں نے قتل کیا ہے۔ وہ اس بات کی امید لگائے بیٹھا تھا کہ میں مصر سے واپس جا کر اسے اس کے بیٹے اور پادریوں کے قاتل کی نشاندہی کروں گا، لیکن میں نے اسے چکر دے کر معاملے کو گول مول کر دیا۔ بہرحال اس نے ان باطنوں کی خدمات سے اس لیے حاصل کی تھی تاکہ اس کے بیٹے اور پادریوں کے قاتل کو ٹھکانہ لگا سکے۔ سلطان محترم، جس وقت میں بلفورٹ سے کیسریا کی طرف روانہ ہوا تو دونوں باطنی میری راہ روک کھڑے ہوئے۔ میں نے ویرانوں میں ایک مقابلے کے دوران ان دونوں باطنیوں کا خاتمہ کر دیا اور کیسریا کی طرف چلا دیا۔ سلطان، کیسریا میں ان دونوں ہمارے خلاف دشمن کا بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے۔ کیسریا میں ہاسپٹلرز، ٹیمپلرز اور صلیبی رضاکاران جوک در جوک ہم پر ضرب لگانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ سلطان محترم، کیسریا کے علاوہ ارسوف اور صدف میں بھی صلیبی رضاکار ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں، اور ان کی ارادہ یہ ہے کہ کیسریا سے نکل کر مصر کی حدود پر ضرب لگائی جائے، سلطان کو لڑنے پر مجبور کیا جائے اور سلطان میں مصر پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ اسے بدترین شکست دی جائے۔ ان کے یہ بھی ارادے ہیں کہ سلطان کے ساتھ جنگ کی صورت میں ارسوف اور صفد میں جو لشکر جمع ہوں گے وہ وقت ضرورت ہمارے خلاف کمک کے طور پر استعمال کیے جائیں گے۔ سلطان، میرا مشورہ ہے کہ ہمیں دشمن کو زیادہ تیاری کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ پہلے ہمیں اپنے لشکر کے ساتھ کیسریا کا رخ کرنا چاہیے۔ اسے فتح کرنے کے بعد فی الفور ہمیں ارسوف اور صفد پر حملہ ور ہونا چاہیے اور ان دونوں کو بھی اینٹ سے اینٹ بجا کر ان کو ایسا پامال کرنا چاہیے کہ پھر وہ کبھی کیسریا کے علاوہ ارسوف اور صفد میں ہمارے خلاف کوئی عسکری طاقت جمع نہ کر سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد امیر ترنیتائی جب خاموش ہوا تو سلطان تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں کھویا رہا، تاہم اس کے چہرے پر ہلکی پر اطمینان مسکراہٹ ضرور تھی۔ اس کے بعد کمرے میں سلطان رکن الدین کی آواز گونجی، ترنیتائی میرے بیٹے، تمہارا مشورہ، تمہاری تجویز بہترین اور قابل عمل ہے۔ عنقریب ایک بار پھر اپنے لشکر کے ساتھ ہم قاہرہ سے نکلیں گے۔ ہمارا سب سے پہلا ہدف تمہاری تجویز کے مطابق کیسریا، اس کے بعد ارسوف اور پھر ہم صفد پر حملہ ور ہوں گے، اور نصرانی دنیا نے جس قدر عسکری قوت یہاں جمع کی ہے اسے کچل کر رکھ دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکن الدین لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ کیسر کے اس کمرے میں سلطان کی آواز گونج گئی، سنو رفیقان درینا،
जिस तरह अलकरक की जंग में हमने अपने दुश्मन के मुजरिम ज़मीर को दर्द के तारीक तिलों में असीर किया था, इसी तरह हम आइंदा जंगों में भी उनकी हालत इसी तरह करके रखेंगे। सुनो मेरे साथियों, मेरे रफ़ीक़ों, बहर रूम के किनारे किनारे सलीब के भंवर की सूरत इख्तियार कर जाने वाले नसरानी हमारे खिलाफ कितनी भी ताकत और अस्करी क़ुव्वत जमा कर ले, मैं तुम तीनों को यकीन दिलाता हूँ कि अपने खुदावंद की नुसरत के सहारे हम अपने दुश्मन की कुव्वतों को हासे बर्दोश करके ज़िंदगी की कत्लगाह में ला खड़ा कर देंगे। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान रुका। उसके बाद उसने कहा, अब तुम उठो, मुस्तकिल की तरफ जाओ और लश्कर को इत्तला दो कि वो अपनी तैयारियां शुरू कर दें। ठीक 1 हफ्ते बाद हम यहाँ से कूच करेंगे और हमारा पहला हदफ केसरिया शहर होगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान खामोश हो गया। फिर अमीर सैफुद्दीन, तुर्निताई और हुस्सामुद्दीन तीनों उठे और सुल्तान की खलवतगाह से निकल गए थे। हुसैन और पुरजमाल रूदा एक रोज़ अपने नाना के घर दीवान खाने की सफाई कर रही थी कि दीवान खाने से बाहर सदर दरवाजे के करीब उसे अपनी नानी सफ्तुना की आवाज़ सुनाई दी। उसने किसी को मुखातिब करके कहा था, तुम दोनों मेरे साथ दीवान खाने की तरफ आओ, मैं तुम दोनों से रूदा से मुतालिक इंतहाई अहम और ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहती हूँ। अपनी नानी की इस गुफ्तगू पर दीवान खाने में सफाई करती हुई रूदा चौंक गई। भाग कर वो दीवान खाने के पर्दे के करीब आई। उसने देखा उसका बाप आमोज और उसका नाना उलियास हवेली में दाखिल हुए थे। उसकी नानी ने उन दोनों ही को मुखातिब किया था। रूदा के हवास पूरी तरह काम कर रहे थे। वो दीवान खाने के दूसरे दरवाजे की तरफ बाहर निकल गई और पर्दे के पीछे होकर खड़ी हो गई ताकि छुप कर दीवान खाने में होने वाली गुफ्तगू को सुन सके। सफ्तुना के कहने पर उलियास आमोज दोनों दीवान खाने में दाखिल हुए। तीनों नशिस्तों पर बैठ गए। पर्दे के पीछे खड़ी रूदा उनकी एक एक हरकत और नकल को पूरी तरह देख रही थी। नशिस्त पर बैठने के बाद सफ्तुना ने आमूस की तरफ देखा और पूछा, समीर को कहाँ छोड़कर आए हो? आमूस के बजाय उल्लास बोल पड़ा, उसे हम दोनों दुकान पर बैठा के आए हैं। अब वो इस काबिल हो गया कि अकेला भी दुकान चला सकता है। इस पर सफ्तुना मुतमईन से अंदाज में बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों यही आए और समीर को तुम दुकान पर बैठा कर आए हो। सफ्तुना को यहाँ तक कहने के बाद रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उलियास ने उससे मुखातिब किया था, तुमने हमें दीवान खाने में बुलाया है और तुम कह रही थी कि तुम हम दोनों से रूदा से मुतालिक गुफ्तगू करना चाहती हो। तुम रूदा से मुतालिक क्या कहना चाहती हो? जवाब में थोड़ी देर के लिए सफ्तुना की गर्दन झुकी रही। वो कुछ सोचती रही। उसके बाद उसने उलियास और आमूस की तरफ देखा। तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैं तुम दोनों से ये कहूँ कि मेरी नवासी रूदा अमीर तुर्निताई को पसंद करती है, उसे चाहती है, उससे मोहब्बत करती है और उसकी रिफाकत, उसकी संग की तलबगार है, तो क्या मेरे इस इंकशाफ पर तुम्हें ताज्जुब होगा? सफ्तुना के इस इंकशाफ पर उलियास और आमूस थोड़ी देर तक अजीब से अंदाज में सफ्तुना की तरफ देखते रहे। उसके बाद उन्होंने बगौर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उलियास ने जवाब देना शुरू किया, सफ्तुना, जहाँ तक अमीर तुर्निताई का ताल्लुक है तो उसकी शख्सियत ऐसी ही है कि हर कोई उसे पसंद करता है। और फिर तुर्निताई एक तो ये गुलाम और लूस के भेष में आमूस और रूदा और समीर को सूसा से निकाल कर यहाँ लाया है। ये एक इंतहाई खतरनाक और जिम्मेदारी का काम था जो उसने सरअंजाम दिया है। लिहाजा इस हवाले से रूदा का अमीर तुर्निताई की तरफ माइल होना, उससे मोहब्बत करना, उसे चाहना एक कुदरती अमल है। अब तुम मजीद क्या चाहती हो? जवाब में सफ्तुना फिर बोल पड़ी, मैं ये चाहती हूँ कि आखिर रूदा बेचारी कब तक छुप छुप कर चोरी चोरी तुर्निताई से मोहब्बत करती रहेगी? क्या ऐसा मुमकिन है कि इस सिलसिले में तुर्निताई से बात की जाए? हो सकता है वो रूदा को अपनाने पर तैयार हो जाए। इस बार आमूस ने जवाब दिया, नहीं मोहतरम खातून, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बेटी रूदा तुर्निताई को पसंद करती है तो मैं समझता हूँ ऐसा उसे करने का हक हासिल है, पर मैं चाहूँगा कि रूदा को तुर्निताई का साथी उस वक्त बनाया जाए जब अमीर की तरफ से भी रूदा के लिए मोहब्बत और चाहत का इजहार हो, वरना ये एक तरफा मोहब्बत रूदा को कुछ ना देगी। आमूस के खामोश होने पर उलियास बोल पड़ा, सफ्तुना, आमूस ठीक कहता है। हम सिर्फ इस इंकशाफ पर ही रूदा को अमीर तुर्निताई के निकाह में नहीं दे सकते कि वो रूदा अमीर तुर्निताई को पसंद करती है। इस पसंद का इजहार अमीर तुर्निताई की तरफ से भी होना चाहिए। जहाँ तक तुर्निताई का ताल्लुक है, वो मिस्र में बहुत बुलंद और ऊंचे अहदे पर फाइज है और अमीर से अमीर घरानों की लड़कियां भी बखुशी उसके हरम में दाखिल होना पसंद करेगी। मैं चाहता हूं कि हम आज ही अमीर तुर्निताई की दावत करें। तुर्निताई रूदा को पहले ही जानता है, इसलिए कि ल्यूस के भेष में वो सूसा से रूदा को निकाल कर यहाँ ला चुका है, इसलिए हमें उन दोनों का आपस में तारुफ नहीं कराना पड़ेगा। हम ये करेंगे कि इस दावत के बाद इस दीवान खाने में रूदा को अमीर के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया जाए। मैं चाहता हूं कि वो दोनों आपस में मिलते जुलते बैठकर गुफ्तगू कर रहे और इसी मेल जोल में अमीर तुर्निताई रूदा से अपनी दिलचस्पी और मोहब्बत का इजहार कर दे, तो मैं समझता हूँ ये हमारी ही नहीं रूदा की भी खुशकिस्मती होगी।
اس لیے کہ امیر جیسے جوان بہت کم اور خال خال ہی پائے جاتے ہیں۔ آموز ابھی بازار جائے گا اور دعوت کا سامان خرید کر لائے گا۔ میں امیر تورنیتائی کی طرف جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ آج شام کا کھانا وہ ہماری حویلی میں کھائیں۔ اس پر آموز نے پوچھ لیا، یہ امیر تورنیتائی کی رہائش کہاں ہے؟ الیاس نے جواب دیتے ہوئے کہا، جفت سازوں کے بازار سے نکل کر جو راستہ تیغ گروں کے بازاروں کی طرف جاتا ہے، جو ہی اس بازار میں داخل ہوا جاتا ہے، ایک حویلی چھوڑ کر دوسری حویلی امیر تورنیتائی ہی کی ہے۔ امیر تورنیتائی میرا پرانا جاننے والا ہے، اس کے ماں باپ بھائی بہن کوئی نہیں، اس لیے کہ سلطان رکن الدین اور امیر سیف الدین کی طرح وہ بھی ایک غلام تھا۔ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ بکتا ہوا یہاں پہنچا اور اپنی قابلیت، ہمت، جواں مرد و شجاعت سے ترقی کرتا کرتا مصر کے لشکر میں سالار اول کے عہدے تک جا پہنچا۔ حویلی میں اس وقت اس کے پاس خدمتگار کے حیثیت سے ایک بوڑھا اور اس کی بیوی ہے، بس وہی اس کی دیکھ بھال اور اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس حویلی میں کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی الیاس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ آموز تو بازار کی طرف چلا گیا، سفتونہ سے صلاح اور مشورہ کر لے۔ آموز تو بازار کی طرف جا، سفتونہ سے صلاح اور مشورہ کر لے، جو یہ کہتی ہے وہ بازار سے تو لا۔ میں ابھی اور اسی وقت امیر تورنیتائی کی طرف جاتا ہوں اور اسے اطلاع کرتا ہوں کہ آج شام کے کھانے پر ان کی ہمارے یہاں دعوت ہے۔ اس کے ساتھ ہی الیاس باہر نکل گیا تھا۔ الیاس کے جانے کے بعد سفتونہ نے آموز کو دعوت کا سامان کی تفصیل بتا دی تھی، لہٰذا وہ بھی سامان لینے حویلی سے نکل گیا تھا۔ آموز کے جانے کے بعد سفتونہ زور زور سے پکارنے لگی، رودا رودا میری بیٹی، تم کہاں ہو؟ بھاگ کر یہاں دیوان خانے میں میرے پاس آؤ۔ تھوڑی دیر تک رودا دیوان خانے کے پردے کے پیچھے رک کر اپنی حالت کو درست کرتی رہی۔ اس کے بعد تقریباً بھاگتے ہوئے وہ دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ سفتونہ اپنی جگہ سے اٹھی، رودا کو اس نے اپنے ساتھ لپٹ لیا۔ پھر سفتونہ نے سرگوشی کے انداز میں کہنا شروع کیا، رودا میری بیٹی، میری بچی، میں نے امیر تورنیتائی سے تیری محبت، تیری چاہت کا اظہار تیرے نانا اور الیاس اور تیرے باپ آموز سے کر دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ رودا کو اس وقت امیر تورنیتائی کی رفاقت میں کیا جائے۔ جب امیر تورنیتائی بھی رودا سے اپنی چاہت اور محبت کا اظہار کر دے۔ میری بیٹی، تیرا نانا آج شام کے کھانے پر امیر کو دعوت دینے گیا ہے، تیرا باپ دعوت کا سامان لینے گیا ہے۔ میری بچی، تو نہا دھو لے اور تیرے پاس جو سب سے عمدہ لباس ہے وہ آج تو پہن، اور اسی لباس میں تو دعوت کے دوران امیر کے سامنے آ۔ دعوت کے بعد میں تجھے زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کروں گی کہ تو تنہائی میں امیر کے پاس رہ کر اس پر اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ اب تو جلدی سے اپنے کمرے کی طرف جا، اپنی تیاری کر، تاکہ تو امیر کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی شخصیت سے متاثر بھی کر سکے۔ اپنی نانی کی اس گفتگو سے رودا شدت جذبات اور خوشی میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر اپنی نانی کو بری طرح لپیٹ گئی۔ اس کے بعد وہ علیحدہ ہو گئی اور اتصال جسم ڈوبی ہوئی وہ دیوان خانے سے نکل کر بھاگتی ہوئی اپنے خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ اس روز بوڑھے الیاس کی حویلی میں بڑی چہل پہل، شان و شوکت اور بہار تھی۔ سفتونہ اور رودا دونوں نے مل کر بہترین کھانے تیار کر دیے تھے اور اب وہ سب مل کر دیوان خانے میں بیٹھے امیر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دیوان خانے میں کچھ اس طرح خاموشی تھی جیسے ہر ایک کے کان اور سماعت امیر کی آمد کے منتظر ہو۔ اس موقع پر شاید انتظار سے تنگ آ کر رودا کی رانی سفتونہ بول پڑی۔ اس نے اپنے شوہر الیاس کو مخاطب کیا، میرے خیال میں امیر کو ابھی تک آنا چاہیے تھا، کیا آپ کے خیال میں دیر نہیں ہو گئی؟ جواب میں بوڑھے الیاس نے کچھ سوچا، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی سفتونہ کو مخاطب کیا، سفتونہ دیر نہیں ہوئی، امیر نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد ہماری حویلی میں آئیں گا۔ میرے خیال میں امیر اب آنے ہی والا ہوگا، اس لیے کہ سورج غروب ہونے ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ سفتونہ اپنے شوہر الیاس کے اس جواب پر مطمئن ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ سب پہلے کی طرح دیوان خانے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک سنتے ہی الیاس چونک جانے کے انداز میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر تورنیتائی آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آموز، سفتونہ، رودا اور سمیر بھی اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ پھر سمیر بھاگتا ہوا تقریباً حویلی کے صدر دروازے کی طرف گیا۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو سامنے تورنیتائی اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا تھا۔ اتنی دیر تک الیاس، آموز، رودا اور سفتونہ بھی دیوان خانے سے باہر آ کھڑے ہوئے تھے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر تورنیتائی کے گھوڑے کی باگ پکڑنا چاہی تاکہ اسے حویلی میں لے جا کر استبل میں باندھے۔ اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے تورنیتائی بول پڑا، سمیر میرے بھائی، میرے گھوڑے کو یہیں رہنے دو، میں اسے صدر دروازے کے ساتھ باندھ دیتا ہوں۔ میں زیادہ دیر رکوں گا نہیں، اس لیے کہ تھوڑی دیر تک مجھے شہر سے باہر لشکر گاہ تک جانا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد امیر نے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا، پھر وہ سمیر کا ہاتھ پکڑ کر حویلی میں داخل ہوا۔ الیاس، آموز،
सफ्तूना, रूदा चारों ने आगे बढ़कर अमीर का इस्तकबाल किया। फिर शिकवे भरे लहजे में इलियास ने पूछा, तो निताई मेरे बेटे, तुमने अपने घोड़े को सदर दरवाजे पर क्यों बांध दिया? तो निताई फौरन बोल उठा, बुजुर्ग इलियास, मैं जल्दी में हूँ, मैं आपकी दावत को ठुकरा नहीं सकता था। मुझे मगरिब की नमाज के बाद शहर के बाहर लश्करगाह की तरफ जाना था, इसलिए कि 2 यौम तक लश्कर यहाँ से एक बार फिर बहरे रूम के नसरानी आमा जागाहों की तरफ कूच करेगा और अपने हमले की इब्तिदा करेगा। अमीर का ये जवाब सुनकर इलियास, आमूस, रूदा, सफ्तूना एक तरह से मुतमईन हो गए थे। समीर भी उनके करीब आ खड़ा हुआ था। फिर दीवान खाने में सब दाखिल हुए। दीवान खाने में जलती मशगलों की रोशनी में तुर्निता ने पहली बार उठकर रूदा की तरफ देखा। उम्दा लिबास और अपनी सज धज में रूदा उस वक्त छमल सुखन की चांद जैसी लग रही थी। थोड़ी देर तक निगाह भर कर अमीर तुर्निता ने रूदा की तरफ देखा, फिर उसने अपनी निगाहें झुका ली थी। इलियास ने उसे अपने पहलू में बैठने को कहा। आमूज और समीर भी उनके दाएं बाएं बैठ गए थे। फिर सफ्तूना और रूदा दोनों सब के सामने खाने के बर्तन रखने लगे थे। जब खाने के बर्तन रखे जा चुके तो इलियास ने अमीर को मुखातिब किया, अमीर मेरे बेटे, शुरू कीजिए। तो नेता ने एक एहतिजाजी निगाह बारी बारी इलियास और अपने करीब ही बैठे आमूज पर डाली। फिर करीब ही खड़ी सफ्तूना और रूदा की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, उन दोनों को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? क्या ये दोनों आपके घर के असीर हैं और कैदी हैं जो ये आपके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? या इन दोनों को आप लोगों ने मना कर रखा है कि तुम दोनों अछूत हो और हमारे साथ बैठकर ना खाना खाना? क्या आप इन दोनों को इजाजत नहीं देंगे कि ये हमारे साथ बैठकर खाना खाए? तो नेता की इस गुफ्तगू पर जहां रूदा खुशी में फूल की तरह खिल उठी थी और सफ्तूना मुस्कुरा रही थी, वहां इलियास और आमूज भी कहकहा लगाते हुए हंस पड़े थे। फिर इलियास ने अमीर को तरफ देखा, तो नेताई मेरे बेटे, ये बात नहीं है, मैं या आमूज किसी ने भी उन दोनों को मना नहीं किया, बस ये अपनी मर्जी से ही हमारे सामने खाना रखने के बाद दोनों खड़ी हो गई हैं। फिर इलियास ने बराह रास्त अपनी बीवी सफ्तूना को मुखातिब किया, तुम दोनों क्यों तुर्निताई की निगाहों में मुझे जैसे बूढ़े को गिराना चाहती हो? आओ हमारे साथ बैठो और दोनों मिलकर हमारे साथ खाना खाओ। इलियास की इन अल्फाज से सफ्तूना और रूदा हरकत में आए। सफ्तूना ने रूदा को मखसूस इशारा किया। इस इशारे को इलियास और आमूज भी समझ गए थे। ये इशारा पाती हुई रूदा अमीर तुर्निताई के सामने बैठ गई, जबकि सफ्तूना अपने शोहर इलियास के पास बैठ गई थी। इसके बाद सब खाने लगे थे। खाने के दौरान रूदा आहिस्ता आहिस्ता सारी अच्छी खाने की अशिया तुर्निताई की तरफ सरकाती जा रही थी और तुर्निताई बारी बारी उन तमाम चीजों को देख रहा था और उसकी तमाम हरकतों का जायजा ले रहा था। खाने के बाद सफ्तून अपनी जगह से उठी और चाहती थी कि बर्तन सिमटना शुरू कर दे, पर रूदा ने उसके हाथ पकड़ लिए। फिर वो खुशी भरी आवाज में कहने लगी, नानी आप बैठे रहे, मैं खुद सारे बर्तन समेटती हूँ। इतनी देर तक समीर भी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। वो बर्तन समेटने में अपनी बहन की मदद करने लगा था। दोनों बहन भाई ने भाग भाग कर सारे बर्तन उठाए और मकबक में जाकर रख दिए थे। उसके बाद दोनों बहन भाई पहले की तरह अपनी नशिस्तों पर आकर बैठ गए थे। जब पहले की तरह रूदा अमीर तुर्निताई के सामने बैठ गई, तब सफ्तूना ने गुफ्तगू का आगाज किया। तुर्निताई मेरे बेटे, मेरे दामाद आमूज ही नहीं बल्कि रूदा और समीर भी तुम्हारे इंतहा दर्जे के शुक्रगुजार और ममनून है कि तुमने बड़ी जरूरतमंदी और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए उन्हें सूसा से निकाला और यहाँ काहिरा में मेरे पास पहुंचा दिया। देख मेरे बेटे, मैं एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में तुम्हारी हवेली में आना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं वहां पहुंचूं और तुम घर ही पर ना हो। इस पर तुर्निताई ने बड़ी आजीजी में जवाब देना शुरू किया, आप जब चाहे मेरी हवेली में आए। मैं अगर घर पर ना हो तो मेरी हवेली में आपकी खातिर खा इज्जत तवाज़ु की जाएगी। सफ्तूना फिर एहतिजाजन बोल पड़ी, तुर्निताई मेरे बेटे, मैं वहाँ तवाज़ु और ज़ियाफत की खातिर तो नहीं जाना चाहती। मैं तो एक इंतहाई अहम मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ, इसलिए कि मुझे खासा वक्त भी चाहिए। तुर्निताई ने कुछ सोचा, फिर दीवान खाने में उसकी आवाज़ सुनाई दी, अभी तो आपके यहाँ से निकलकर मैं सीधा शहर से बाहर लश्करगाह की तरफ जाऊंगा। रात का बाकी हिस्सा वहां गुजारूंगा। कल आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? जिस तरह आज आपने मेरी ज़ियाफत की है, कल आप सब लोग शाम के वक्त मेरे यहाँ आइए, मेरे साथ खाना खाइए, उस ज़ियाफत ही समझिए, इसलिए कि मैं 2 रोज बाद यहाँ से लश्कर के साथ रवाना हो जाऊंगा। जंगों में मेरा कितना वक्त लगेगा मैं नहीं जानता। इसके बाद हो सकता है 2-3 माह तक मेरी आपसे मुलाकात ना हो सके। तो नेताई की इस गुफ्तगू से इलियास के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। थोड़ी देर तक वो कुछ सोचता रहा, फिर उसने तुर्निताई को मुखातिब किया, तुर्निताई मेरे बेटे, मैं वक्त से कबल ही तुम्हारी इस ज़ियाफत का शुक्रगुजार हूँ। मैं सोचता हूँ तुम्हारे यहाँ इस ज़ियाफत का एहतमाम कौन करेगा? तुम्हारे जो खिदमतगार है वो दोनों बूढ़े मियाँ बीवी है, वो तो इस ज़ियाफत का एहतमाम नहीं कर सकते। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इसका एहतमाम कर सकता हूँ। तुर्निताई ने सवालिया अंदाज में इलियास की तरफ देखा। बुजुर्ग इलियास, वो कैसे? इलियास फिर बोल पड़ा, वो इस तरह के कल से पार के करीब सफ्तून और रूदा दोनों नानी और नवासी
तुम्हारी हवेली में पहुंच जाएंगी। तुम सही पैर तक ज़ियाफत का सारा सामान तैयार रखना, और जिस तरह उन दोनों ने आज यहाँ ज़ियाफत का इंतजाम किया है, ऐसे इत्माम कल तुम्हारी हवेली में भी कर देंगे। कहो मेरी तजवीज़ तुम्हें मंजूर है। अमीर ने बारी बारी एक निगाह सफ्तुना फिर रुदा पर डाली, फिर इलियास की तरफ देखा। बुजुर्ग इलियास, आपने एक तरह से मेरी सारी मुश्किलें हल करके रख दी है। मैं अब यहाँ से उठकर सीधा लश्करगाह की तरफ जाऊंगा। शायद मुझे आधी रात तक वहाँ रहना पड़े। उसके बाद मैं अपनी हवेली में लौटूंगा। फिर कल दिन के वक्त ज़ियाफत का सारा इंतजाम और एहतमाम करूंगा। उसके बाद अगर रुदा और उसकी नानी जहमत महसूस ना करे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे हवेली में आकर ज़ियाफत का सारा एहतमाम अपने हाथों से करे। रुदा ने इस मौके गनीमत जाना कि बराह रास्त अमीर से मुखातिब हो सके, लिहाजा सफ्तुना की तरफ से जवाब का इंतजार किए बगैर वो झट से बोल पड़ी। अमीर, शायद आपने इस बात को निगाह में नहीं रखा होगा कि आप हम सब के मोहसिन और मुरब्बी हैं। अगर आप हमें सूसा से निकाल कर यहाँ ना लाते तो खुदा जाने बिलफोर्ड के हुक्मरान बुराबिन के हाथों हमारी क्या हालत होती। आपका हमें सूसा से निकालकर काहिरा लाना एक ऐसा एहसान है जिसका बदला किसी भी सूरत चुकाया नहीं जा सकता। आप तो सिर्फ ज़ियाफत की बात कर रहे हैं। हमें कसम मूसा और दाऊद की, अगर मुझे या मेरी नानी को रोज आपके लिए खाना तैयार करना पड़े तो हम ये काम बहुत खुशी से अंजाम दे सकते हैं। रुदा की बेबाकाना गुफ्तगू से सफ्तुना, इलियास और आमूस के चेहरे पर पसंदीदा से मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। इस मौके पर अमीर ने भी अजीब से जज्बे में रुदा की तरफ देखा। फिर रुदा की इस गुफ्तगू का जवाब देने के बजाय अमीर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और बोल पड़ा, बुजुर्ग इलियास, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अमीर सैफुद्दीन और हुस्सामुद्दीन दोनों लश्करगाह में पहुंच चुके होंगे और बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए कि 2 दिन बाद लश्कर को यहाँ से कूच करना है। अमीर की इस गुफ्तगू के जवाब में इलियास, आमूस, समीर तीनों उठ खड़े हुए। सफ्तुना और रुदा पहले ही खड़ी थी। सब दीवान खाने के बाहर आए। समीर ने भागकर हवेली का सदर दरवाजा खोला और दरवाजे के साथ बंधे हुए अमीर तुनिता के घोड़े की बाग भी उसने खोली और बाग खुद खुशी का इजहार करते हुए अमीर को पेश की। अमीर ने भी अलविदाई अंदाज में हाथ फैलाकर उन्हें खुदा हाफिज कहा। फिर वो एक जुस्त लगाने के साथ अपने घोड़े पर सवार हुआ और अंधेरे में जुस्त साजों के बाजार में उनकी निगाहों से उछल हो गया। दूसरे रोज सहपहर के करीब सफ्तुना ने अमीर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। रुदा उस दिन से भी ज्यादा अच्छा लिबास पहने हुई थी। दस्तक देने की थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और दरवाजा खोलने वाला अमीर तुनिताई था। जो ही उसने दरवाजे पर सफ्तुना और रुदा को देखा, लम्हे भर के लिए उसके चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर सफ्तुना की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने सारा सामान ला कर रखा है। अब मैं आप दोनों ही का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जवाब में रुदा या सफ्तुना कुछ कहना ही चाहती थी कि अमीर तुनिताई ने उन दोनों को अपने करीब एक खड़े बूढ़े और ढलती हुई उम्र की खातून की तरफ मुतवज्जो किया। फिर बोल पड़ा, शायद आप इन दोनों से मुवाकिफ नहीं होंगे। बज़ाहिर इन दोनों को लोग मेरे घर का खुद्दाम शुमार करते हैं, लेकिन मैं इन्हें इस हवेली का मालिक ख्याल करता हूँ। ये जो बूढ़ा है आपके सामने खड़ा है, इसका नाम हल्दून है। खातून इसकी बीवी है, इसका नाम हबासा है। ये इस वक्त से मेरे पास इस हवेली में काम करते हैं जब से सुल्तान रुकनुद्दीन ने मुझे अपने लश्करियों का सालार अव्वल मुकर्रर किया। ये हवेली मुझे सुल्तान की तरफ से इनायत की गई। सफ्तुना और रुदा दोनों आगे बढ़ी और बड़े खुशगवार अंदाज में हिल्दून की बीवी हबासा से मिली। उसके बाद अमीर ने उन दोनों को लेकर दीवान खाने में आया। हबासा और हल्दून भी दीवान खाने के दरवाजे तक उनके साथ आई। फिर हल्दून ने अमीर को मुखातिब किया, तो निताई मेरे बेटे, मैं और हबासा दोनों मियाँ बीवी जो सामान आपको लेकर आए हैं उसे मतबख में जमा करते हैं ताकि उन दोनों खातूनों को कोई चीज लेने में दुश्वारी पेश न आए। अमीर ने जवाब में इस बात में सर हिला दिया। इस पर हिल्दून और हबासा दोनों वहां से चले गए थे। अमीर तुनिताई, सफ्तुना और रुदा दोनों दीवान खाने में बैठ गए थे। फिर सफ्तुना ने अमीर की तरफ देखते हुए गुफ्तगू का आगाज किया, तुनिताई मेरे बेटे, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे अपनी यहाँ ज़ियाफत का एहतमाम करने का मौका फराहम किया। इस वक्त मैं एक इंतहाई अहम और नाजुक मौजू पर तुमसे गुफ्तगू भी करना चाहती हूँ। गुफ्तगू मेरी नवासी रुदा से मुतालिक है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इजाजत दोगे कि मैं खुलकर तुमसे बात करूं। इस पर तुनिताई ने सवाल अंदाज में बारी बारी सफ्तुना फिर रुदा की तरफ देखा। फिर उसके दीवान खाने में आवाज सुनाई दी, मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है, आप जो कहना चाहते हैं कहिए। जवाब में सफ्तुना फिर बोल पड़ी, तुनिताई मेरे बेटे, देख जो गुफ्तगू मैं करने लगी हूँ ये मेरी नवासी रुदा से मुतालिक है। ये गुफ्तगू मैं उसके सामने ही करने लगी हूँ ताकि तुम्हें एहसास हो कि इस गुफ्तगू का आगाज मेरी ही तरफ से नहीं हो रहा, बल्कि इस गुफ्तगू में मेरी नवासी रुदा की मर्जी और रजामंदी भी शामिल है। देख तुनिताई मेरे बेटे, तूने जिन हालात में आमोस, रुदा और समीर को सूसा से निकाल कर बहिफाजत काहिरा पहुंचाया,
वो हर एक के बस का रोग ना था। तुम्हारी इस हिम्मत, जवान मर्दी और शुजाअत और दिलेरी और बेबाकी से रुदा बेहद मुतासिर हुई। जिस वक्त हमें ये खबर न थी कि सूसा से उन्हें निकालने वाला सुल्तान रुकनुद्दीन का लश्करियों का सालार अव्वल तुर्निताई है, उस वक्त तक रुदा अक्सर कहा करती थी कि लूस नाम के जिस शख्स ने हमें सूसा से निकाला है, उसकी गुफ्तगू से जाहिर होता था कि वो नसरानी नहीं है वो और ना ही वो गुलाम है, बल्कि वो कोई आला शख्सियत का मालिक है। और दबे दबे अल्फाज में मेरे बेटी ये तुम्हारे मुतालिक गुफ्तगू करती थी, लेकिन चूंकि इसके जहन में ये बात बैठी हुई थी कि तुम नसरानी होने के अलावा गुलाम भी हो, लिहाजा इस बिचारी ने चुप रहकर सारी बात दिल में ही रख ली थी। फिर जिस रोज लश्कर जुफ्त साजों के बाजार से गुजरा तो हमें खबर हुई कि हम पर एहसान करने वाला लूस नाम का कोई गुलाम नहीं, बल्कि सुल्तान रुकनुद्दीन के लश्करों का सालार अव्वल तुर्निताई है। तो मेरे बेटे रुदा, जो अब तक खामोश थी, वो अंदर ही अंदर तुमसे चाहत और मोहब्बत करने लगी। देख मेरे बेटे, यही गुफ्तगू थी जो मैं तुमसे करना चाहती थी। तुर्निताई, मेरे बेटे, मैं तुम पर इंकशाफ करती हूँ कि तुम मेरी नवासी रुदा तुमसे मोहब्बत करने लगी है और तुम्हें चाहती है। देख मेरे बेटे, जब कभी भी तो अपनी जिंदगी के साथी का चुनाव करने लगो तो मेरे बेटे मेरी नवासी रुदा को भी निकाह में रखना। तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि ये ऐसी लड़की है जो सारी उम्र अपनी खिदमत और दिल नशीनी रिफाकत से तुम्हें मुतासिर करती रहेगी। यहाँ तक कहने के बाद सफ्तूना जब खामोश हुई तो तुर्निताई थोड़ी देर तक गर्दन झुकाकर कुछ सोचता रहा। फिर उसने एक गायब निगाह अपने सामने बैठी रुदा पर डाली। रुदा की गर्दन उस वक्त झुकी हुई थी और वो अपने पाँव की तरफ देख रही थी। तुर्निताई थोड़ी देर तक उसे गौर से देखता रहा। फिर सफ्तूना को उसने मुखातिब किया, खातून मोहतरम, मैंने चूंकि आमोस, रुदा और समीर को सूसा से निकालकर काहिरा में पहुंचाया और उसके लिए मैंने उनसे कोई मुआवजा या इनाम वसूल नहीं किया, इस लिहाज से तीनों मुझे अपना मोहसिन और मुरब्बी ख्याल करते हैं। जब कोई किसी पर एहसान करता है या किसी से कोई अच्छे तरीके से पेश आता है तो एक तरह से उसके दिल में एहसान करने वाले के लिए हमदर्दी और दर्दमंदी जरूर पैदा हो जाती है। यही कैफियत इस वक्त रुदा की भी है। मेरे ख्याल में यही कैफियत उसके बाप आमोस और भाई समीर की भी होगी। देख खातून मोहतरम, किसी से मोहब्बत करना, चाहत का इजहार करना और बात है, पर किसी से मखसूस हालात के तहत हमदर्दी और दर्दमंदी का इजहार करना दूसरी बात है। मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा एक काम उनके जहन से मोह हो जाएगा तो मेरे रुदा के दिल में हमदर्दी या कोई दूसरा जज्बा पैदा हुआ है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होकर रह जाएगा। इस मौके पर रुदा बेचारी की गर्दन झुकी रही और वो मुंह से तो कुछ ना कह सकी, ताहम वो नफी में अपनी गर्दन हिलाती जा रही थी। सफ्तूना शायद जवाब में कुछ कहती तो रुदा फिर बोल पड़ा, खातून मोहतरम, मैंने अपना बचपन यास और इफलास और बेचैनी बेरहम वक्त में गुजारा है। मैंने गुलाम बनकर अपने बचपन को गुजारा है। गम से डूबे हुई मेरी रातें गुजरी है। ये मेरे बचपन का दौर था जब मैं उजड़े चेहरे पर गुर्बत के फटे पुराने कपड़े पहना करता था। जगह जगह धक्के खाने और बिकने के बाद आखिर शायद खुदावंद मेरे ऊपर मेहरबान हुआ और उसने मुझे सुल्तान के यहाँ पहुंचा दिया। यहाँ तक कहने के बाद तुर्निताई खामोश हो गया। उसने देखा कि उसके सामने बैठी रुदा की गर्दन झुकी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। उसका दामन उसके अश्कों से भीगा हुआ था और वो अपनी हिचकियां और सिसकियां को बेचारी गले में रोकने की कोशिश कर रही थी। दीवान खाने में थोड़ी देर तक खामोश रही। हसीन रुदा अपनी गर्दन झुकाए रोने लगी थी। तुर्निताई ने उसकी तरफ देखा। उसे अंदाजा लगा कि रुदा बेचारी की हालत ऐसी हो रही थी गोया वो होठों के लर्जा सवाल, सफी दायमी और हिजर दोस्ती की इम्तियाज और यादों की चुप में महवूल होती जा रही थी। रुदा की तरफ देखने के बाद तुर्निताई ने फिर सफ्तूना को मुखातिब किया, खातून मोहतरम, ये दुनिया फकत एक धोखा है और उस धोखे में मेरी हैसियत आखिरी बेलफ्ज आवाज की तरह है। मैं सुल्तान रुकनुद्दीन के लश्करों का सालार अव्वल हूँ और जंग में अपने लश्करों के आगे रहना मेरा मनसब की जरूरत है। बज़ाहिर मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल है। देख खातून मोहतरम, मैं जंगों में हिस्सा लेने वाला मंजिल का वो मुतलाशी हूँ जिसकी हालत किसी भी वक्त रात के बिखरे उनासिर उजाड़ संसार मकान और रेत के मानिंद बिखरती शिराज की मानिंद हो सकती है। जहां तक रुदा का ताल्लुक है, उसने आंचलों, ख्वाबों और अच्छे मौसम में परवरिश पाई है। जिंदगी के इसे मेले में उसकी हालत ख्यालों की तिंतलों तरह है। खातून मोहतरम, मैं किसी आंचल की ख्वाहिश, किसी दामन के अरमानों में रुदा को अपना रफीक बनाकर उसकी जिंदगी को वहमों की दीवारों की तरह नहीं करना चाहता। मैं उस आईने को लकीरदार नहीं करना चाहता। मैं रुदा को महल की ज़ियाफ खानों से निकाल कर सावन की जैसी जुल्मतों का शिकार नहीं करना चाहता। यहाँ तक कहने के बाद अमीर तुर्निताई जब खामोश हुआ तो थोड़ी देर के लिए कमरे में फिर खामोशी रही और फिर एक बार
अजीब से अंदाज में रुदा ने अमीर तुर्निताई की तरफ देखा। उसके हालत से लगता था वो तुर्निताई की गुफ्तगू का जवाब में बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कहने की हिम्मत अपने आप में महसूस नहीं कर रही थी। वो ऐसे अल्फाज जमा ना करने पा रही थी जिससे वो अपने ख्यालात का अक्कासी कर सके। ताहम इस मौके पर उसकी नानी सफ्तुना बोल पड़ी, तुर्निताई मेरे बेटे, जो कुछ तुमने कहा है इसमें शक नहीं, पर सुन मेरे बेटे, एक परिंदा अगर खुद अपनी हिफाजत, अपनी बेहतरी की खातिर किसी पिंजरे में आना चाहे, और अगर एक मुसाफिर अपनी चमकती हुई साफ शफाफ शाहिरा को छोड़कर किसी उस शाहिरा से निकलने वाले किसी गुमनाम रास्ते से अपने रुख अपनी मर्जी से करना चाहे, तो क्या तुम ऐसे शख्स को रोकना पसंद करोगे? देख मेरे बेटे, तुम जो कुछ भी हो वो मेरे और रुदा के सामने हो। इसमें शक नहीं कि तुम सुल्तान के लश्करों के सालार अव्वल हो, पर तुम्हारी इस हैसियत को देखते हुए रुदा तुम्हारे करीब नहीं आई। रुदा को जो तुमने सूसा से निकालकर काहिरा पहुंचाया और अपने आप को गुमनाम रखा और फिर उस बहुत बड़े मार्के का मुआवजा तक वसूल नहीं किया और अपने आप को गुलाम जाहिर किया, जो आजिजी इख्तियार की, बस यही चीजें रुदा के दिल में तुम्हारे लिए कुर्ब और मोहब्बत और चाहत पैदा कर गई। मेरे बेटे, मैं जानती हूँ इस मौके पर तुम्हारी गुफ्तगू के जवाब में रुदा बहुत कुछ कहना चाहेगी, लेकिन शर्म के बायस वो तुमसे शायद इस मौके पर कुछ ना कह सके। मेरे बेटे, जो कुछ तुमने कहा है वो सब कुछ सुनने के बाद रुदा बखुशी तुम्हारी रिफाकत को अपने गले लगाएगी। वो बखुशी तुम्हारी ज़ौजियत को अपने गले का तोक बनना पसंद करेगी और सारी उम्र तुम्हारी कलमों में निछावर कर देने का अज़्म का इजहार करेगी। अब कहो, मेरी इस गुफ्तगू के जवाब में तुम क्या कहते हो? अमीर तुर्निताई थोड़ी देर तक गर्दन झुकाकर कुछ सोचता रहा, फिर उसने अपनी राय का इजहार किया। खातून मोहतरम, आपके इन अल्फाज ने मेरे पास कहने को कुछ नहीं। अगर रुदा की यही कैफियत है तो फिर कुछ अरसा इंतजार करे, सब्र से काम ले। मेरे किरदार, मेरे अतवार, मेरे उठने बैठने, मेरी जिंदगी के उतार चढ़ाव का जायजा लेते रहे। अगर मेरी शख्सियत को अच्छी तरह जानने और पहचानने के बाद भी ये मेरी रिफाकत कबूल करना पसंद करे तो फिर मैं इनकार नहीं करूंगा। अमीर तुर्निताई की उस गुफ्तगू से जहां बूढ़ी सफ्तुना की आंखें खुशगुमान और माथा माह कामिल हो गया था, वहां रुदा, जो थोड़ी देर पहले किसी सीसी शहर में भवन की तरह फंसी हुई थी, वो भी खुश हो गई थी। अमीर की उस गुफ्तगू से हसीन सुर्ख चेहरे पर सब हुसीन फूलों का रंग सुर्ख करने लगा था। इस मौके पर रुदा ने अमीर की गुफ्तगू का जवाब तो कुछ ना दिया, ताहम उसकी नानी सफ्तुना बोल पड़ी, तुर्निताई मेरे बेटे, तूने सारे शिकवे, सारे गिले दूर करके रख दिए हैं। अपनी गुफ्तगू से तूने हम दोनों नानी और नवासी के आतिश एहसास को ठंडा करके रख दिया है। फिर सफ्तुना अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। तुर्निताई मेरे बेटे, अब मुझे और रुदा को वो सामान दिखाओ जो जियाफत के लिए इस्तेमाल होना है। जवाब में तुर्निताई अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। रुदा भी उठ खड़ी हुई थी। दोनों को लेकर तुर्निताई मतबख में आया। दोनों नानी नवासी को उसने सारा सामान दिखाया। फिर वो जियाफत के लिए मुख्तलिफ खाने तैयार करने में मसरूफ हो गई थी। शाम के करीब बूढ़ा उलियास, आमूस और समीर भी वहां पहुंच गए थे। इंतहाई खुशगवार माहौल में सबने मिलकर खाना खाया। सफ्तुना ने रुदा की मौजूदगी में उसकी मोहब्बत और चाहत के मुतालिक जो अमीर से गुफ्तगू की थी, उसके मुतालिक तफसील से भी उसने उलियास और आमूस से कह दी थी। वो दोनों भी उसकी गुफ्तगू से मुतमईन और पुरसुकून दिखाई दिए थे। काफी रात गए तक वो सब अमीर तुर्निताई की हवेली में रहे, फिर अपने घर लौट गए थे। पर हमलावर होने के लिए एक बार फिर सुल्तान रुकनुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ कूच किया था। लश्कर जिस वक्त जुफ्त साजों के बाजार से गुजर रहा था तो अचानक रुदा अपनी हवेली से भागते हुए निकली थी। उसके हाथ में दो बड़ी बड़ी कटरियां थी। उसके पीछे पीछे उलियास, आमूस, सफ्तुना और समीर भी हवेली से निकले भागे थे। वो गली में आई थी। देर तक लश्कर का अगला हिस्सा, जिसमें खुद सुल्तान, अमीर सैफुद्दीन, तुर्निताई और हुसामुद्दीन थे, वो हवेली के करीब आ गया था। रुदा बड़ी तेजी से आगे बढ़ी और दोनों कटरियां जो उसने अपने हाथों में रखी थी उसने अमीर तुर्निताई के घोड़े के ज़ेन के से लटका दी और मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में अमीर तुर्निताई को मुखातिब किया, मेरी दुआ है कि खुदावंद मेहरबान मूसा और दाऊद का रब आपको इस मुहिम से कामयाब और कामरान वापस लेकर आए। इसके साथ ही रुदा अपनी नानी सफ्तुना के करीब आ खड़ी हुई थी। इस मौके पर उलियास, आमूस के अलावा समीर हाथ हिलाते हुए तुर्निताई को अलविदा कह रहे थे। तुर्निताई भी थोड़ी दूर तक हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहता रहा। फिर वो तेजी से आगे बढ़ते हुए लश्कर की वजह से उनकी निगाहों से उछल हो गया था। अपनी सल्तनत की हुदूद से निकलने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन ने बड़ी तेजी से सफर किया और कैसरिया शहर का जाम मुहासरा किया। बंदरगाह होने के साथ साथ ये शहर सलीबियों का सबसे बड़ा मरकज और मजबूत आमाजाहगाह शुमार किया जाता था। ईसाई दुनिया को भी उनके जासूसों के जरिए खबर हो चुकी थी कि सुल्तान रुकनुद्दीन अलकरक को फतह करने के बाद अब कैसरिया का रुख कर रहा है। लिहाजा बहरी रूम के साहिल के साथ साथ जिस कदर नसरानी रियासतें थी उन सब ने अपने छोटे छोटे लश्कर कैसरिया भेजे।
इस तरह कैसरिया में एक बहुत बड़ा लश्कर जमा हो गया था। इसके अलावा मुसलमानों के अज़ली दुश्मन टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर्स ने भी वहां अपने बेहतरीन कुव्वत जमा कर ली थी। ये मुत्तहद लश्कर कैसरिया शहर में महफूज हो गया था और उनका इरादा था कि महसूर रहकर सुल्तान रुकनुद्दीन से जंग की इब्तिदा की जाए। कैसरिया पहुंचते ही सुल्तान ने शहर का मुहासरा कर लिया। मुत्तहद नसरानी लश्कर 7 दिन तक शहर के अंदर महसूर रहा और वक्फे वक्फे से उनकी टोलियां शहर से निकलती कभी दिन के वक्त मुख्तलिफ सिमतों से सुल्तान के लश्कर पर हमलावर होकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, कभी शबखुन मारने की कोशिश करती, लेकिन ये सारी हरकतें सुल्तान का कुछ ना बिगाड़ सकी। दरअसल महसूर रहने के साथ साथ वक्फे वक्फे से दिन और रात के वक्त सुल्तान पर हमला करने के उनके इरादे थे, लेकिन वो अपने इरादे में बुरी तरह नाकामयाब हो गए थे। सुल्तान ने लगातार 7 दिन तक मुहासरा जारी रखा। दिन ब दिन वो मुहासरे में सख्ती पैदा करता चला गया था और जो भी दुश्मन का लश्कर दिन के वक्त हमलावर होता या शबखुन मारता, उस पर जवाबी का हमले करके सुल्तान के लश्करी उन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाते। 7 दिन के लगातार मुहासरे के बाद सलीबियों ने अंदाजा लगाया कि वो अपने हिलिये और अपने दाव पेश से सुल्तान को पड़ाव उठाने पर मजबूर नहीं कर सकते और एक ही इस तरह सुल्तान का मुहासरा दिन ब दिन सख्ती पैदा करता चला जा रहा है, यहाँ तक कि सुल्तान रुकनुद्दीन से फैसला कुन जंग करने के लिए मुत्तहद सलेबी लश्कर ने 7 रोज बाद शहर का दरवाजा खोला और फिर सुल्तान के लश्कर के सामने वो सफ आरा हुई। सुल्तान ने भी शहर के अतराफ से अपने सारे लश्कर को समेट कर सलेबियों के सामने सफ आरा कर दिया। सलेबियों ने अपने लश्कर को सुल्तान का मुकाबला करने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम किया। जवाब में सुल्तान ने भी अपने लश्कर की तकसीम ऐसी ही की थी कि और उन्होंने भी अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा सुल्तान ने अपने पास रखा और लश्करियों का सालार आला सैफुद्दीन को अपने साथ रखा। दूसरा हिस्सा अमीर तुर्निताई की कमांडरी में दे दिया गया था और हुसामुद्दीन को तुर्निताई के नायब के तौर पर मुकर्रर किया था। हमले की इब्तिदा नसरानियों की तरफ से हुई थी और नसरानियों के लश्कर का एक हिस्सा जमीन को धंसता, बादलों की रेत को खूनी बरसात, दिलों को आईने को तोड़ने की तरह हमलावर हो गया था। ऐन उसी वक्त दुश्मन के लश्कर का दूसरा हिस्सा भी बड़ी खौफनाक आंधी की तरह सुल्तान पर हमलावर हो गया था। सुल्तान रुकनुद्दीन, सैफुद्दीन, अमीर तुर्निता और हुसामुद्दीन थोड़ी देर तक बड़े सब्र से दुश्मन के हमलों को रोकते रहे। उसके बाद लश्कर में सुल्तान ने तकबीरें बुलंद करनी शुरू कर दी थी। उन तकबीरों के जवाब में सैफुद्दीन, तुर्निता, हुसामुद्दीन भी सुल्तान ही की तरह लश्कर में तकबीरें बुलंद कर रहे थे। इन तकबीरों के जवाब में लश्करी भी जगह जगह तकबीरें बुलंद करना शुरू हो गए थे और इन तकबीरों का लश्करियों पर कुछ ऐसा असर हुआ कि बज़म दर बज़म फैलती रोशनी की तरह वो दुश्मन पर पूरी तरह टूट पड़े थे। थोड़ी देर तक सुल्तान रुकनुद्दीन, सैफुद्दीन, तुर्निताई, हुसामुद्दीन दुश्मन के हमलों को रोकते रहे। उसके बाद सुल्तान रुकनुद्दीन और सैफुद्दीन ने जवाबी हमलों की इब्तिदा की। दोनों अनजानी मंजिलों की तरह बस्ती बस्ती क़यामत बर्पा करते, झुलसलाते, रक्स करती आग के शोलों की तरह हमलावर हो गए थे। जिस वक्त सुल्तान रुकनुद्दीन और सैफुद्दीन ने दुश्मन पर जवाबी ज़रबें लगाई थी, उसके थोड़ी देर बाद अमीर तुर्निताई भी हुसामुद्दीन के साथ हरकत में आया और वो दोनों भी मिलकर दास्तान गम में मचलती हवाओं की तरह हमलावर हो गए थे। इन जवाबी हमलों से मैदान जंग खोलते समुंदर गर्म लहरों की तूफान की तरह हो गया था। जिस वक्त जंग अपने उरूज पर थी, सुल्तान रुकनुद्दीन ने अपने लश्करों का हौसला बढ़ाने की खातिर बुलंद आवाज में उन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, सुनो शऊर और इफ्कार की आगाही रखने वालों, मेरे रफीकों, शराफतों की लिबादे उड़ने वालों, मेरे लश्करियों, तुम वो मुजाहिद हो जो अपने पाकीज़ा इरादों से जमीन को अपनी कनीज और आसमान को अपना गुलाम बना लेते हैं। अगर तुम खुलूस नीयत से आजिज़ी के साथ अपने रब को याद करते हुए दुश्मन पर ज़रबे लगाओ तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरा रब चांद, तारों और सूरज और कहकशा को तुम्हारे कदमों की धूल बनाकर रख देगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन लम्हे भर के लिए रुका, फिर उनकी खौलती हुई आवाज़ बुलंद हुई, सुनो मोहब्बतों के कुबा पहनने वालों, अंधेरों को उजालों का लिबास देने वालों, दुश्मन पर दिलो जान से हमले करो। सुल्तान की इस तकरीर ने उनके मुजाहिदों बड़ा असर किया। सुल्तान के इन अल्फाज का ऐसा असर हुआ कि उसके लश्करी सैलाब की बेरोक की तरह दुश्मन पर छाना शुरू हो गए थे। सुल्तान रुकनुद्दीन के आतिश फिशानी अल्फाज के जवाब में उनके लश्करी शोले से बगोले बनते हुए दुश्मन पर ज़रबे लगाने लगे थे। कुछ देर तक जंग का ऐसा ही समा जारी रहा, लेकिन हॉस्पिटलर्स टेम्पलर्स के नए हमलों की ये वलवले सुल्तान के लश्करियों की हिम्मत को पुस्त ना कर सके और इसी तरह अपने जोश और जज्बे में सुल्तान के अल्फाज को अपने सीनों में सजाए जज्बों की सदाकत की तरह दुश्मन पर टूटने लगे थे। सुल्तान के लश्करों के इन हमलों में अनोखी लज्जत पैदा हो गई थी। आखिरकार जंग अपने अंजाम को पहुंची। सुल्तान ने दुश्मन को बदतरीन शिकस्त दी और नसरानी लश्कर कैसरिया शहर के नवाह से भाग खड़ा हुआ। सुल्तान ने अपने पूरे लश्कर के साथ दूर तक अपने सामने भागते हुए दुश्मन का ताक़ुब किया और उनका खूब कत्लेआम किया।
اس کے بعد سلطان واپس قیصریہ کی طرف چلے گئے تھے۔ شکست کھانے والے نصرانی لشکر ارسوف شہر کی طرف چلا گیا تھا۔ ارسوف اور صفد دونوں شہروں میں اس وقت نصرانیوں کے بڑے بڑے لشکر تھے جنہیں وہ سلطان کے خلاف استعمال کر سکتے تھے، لیکن نصرانیوں کو قیصریہ میں جمع ہونے والے اپنے لشکر پر اس قدر بھروسہ اور اعتماد تھا کہ انہوں نے ارسوف اور صفد کے لشکریوں کو اپنے ساتھ ملانا پسند ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے طور پر یہ یقین کر بیٹھے ہوئے تھے کہ قیصریہ شہر سے باہر وہ مسلمانوں کے سلطان اور ان کے لشکریوں کو بدترین شکست دیں گے، لیکن کارکنان قضا ان کے خلاف حرکت میں آ چکے تھے۔ سلطان رکن الدین اپنے لشکر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں قیصریہ شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی سلطان نے شہر کے اندر جو قلعہ تھا اسے مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ سلطان کے حکم پر قلعے کی بنیادیں تک اکھاڑ دی گئی تھی۔ قیصریہ کے فتح نے اس آہنی جنگی دیوار میں سوراخ ڈال دیا جو صلیبیوں نے ساحل کے ساتھ بے شمار جنگی قلعوں کی صورت میں قائم کر رکھے تھے۔ یہ قلعے تمام بندرگاہوں میں خشکی کی جانب بنائے گئے تھے۔ دفاعی لحاظ سے ان کا یہ فائدہ تھا کہ دشمن اگر خشکی کی طرف سے محاصرہ کرے تو سمندر کا راستہ بہر صورت کھلتا رہتا تھا۔ سمندر ہی کے ذریعے ان صلیبی قلعوں کا رابطہ یورپ سے رہتا تھا اور وہاں سے تازہ دم جنگجو آلات حرب اور اشیاء خوراک وغیرہ بھی پہنچتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ ان بندرگاہوں کے مدخلوں میں پل تعمیر کر دیے گئے تھے اور چھوٹی چھوٹی چوکیاں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا گیا تھا جن کے ذریعے سے تمام ساحلی قلعے بندرگاہیں اس سلسلے میں مضبوط ہو گئی تھی۔ لبنان اور فلسطین کے ساحل پر ایسی کئی برج آج بھی آثار قدیمہ کی صورت میں موجود ہیں۔ قیصریہ صلیبیہ کی جنگی سلسلے کی سب سے پہلی کڑی تھی جس پر سلطان نے اپنی ایک ہی وار میں توڑ کر قبضہ کر لیا۔ سلطان نے اس قلعے پر حملے کا منصوبہ جس عمدگی سے تیار کیا، اس سے سلطان کی غیر معمولی ذہانت اور عسکری تجربے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ محاصرے کے دوران وہاں کے صلیبیوں کو سلطان نے کسی بھی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچنے دی۔ اس طرح قلعے کی تسخیر کے بعد سلطان نے دفاعی استحکامات کو اس انداز سے مضبوط کیا تھا کہ دشمن حیران ہو گئے تھے۔ بلفورڈ کا حکمران برالون ایک روز اپنے سپہ سالار سیگر اور اپنی بیٹی برنیس کے ساتھ اپنے قیصر کے کمرے میں بیٹھا سلطان رکن الدین اور اس کے لشکریوں کے ہاتھوں نصرانیوں کے متحد لشکر کی قیصریہ میں شکست پر تبادلہ خیال کرتا رہا کہ برالیون کا چوبدار اندر آیا۔ اپنے سر کو زمین کی طرف خوب جھکاتے ہوئے اس نے پہلے برالیون کو تعظیم پیش کی، اس کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ برالیون کو مخاطب کیا، آقا اس وقت 4 اشخاص آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان چاروں میں سے 2 پادری ہیں جن کا تعلق دمشق سے ہے اور ان کے نام نیول اور نابل ہے۔ دوسرے 2 باطنی ہیں اور شیخ الجبل کے فدائی ہیں، ان کے نام قاریون اور برزیل ہے۔ اپنے چوبدار کی اس گفتگو پر برالیون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے بغیر کسی توقف کے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ سنو، ان چاروں کو باہر روکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی باری باری انہیں میرے پاس بھیجنے کی۔ چندہ ضرورت ہے کہ تم ان سب کو ایک ساتھ میرے سامنے پیش کرو۔ میں دیکھتا ہوں کس غرض سے آئے ہیں۔ میرے خیال میں جو فدائی ہیں وہ تو میرے التماس پر بھیجے گئے ہوں گے تاکہ میں اپنے بیٹے کے قاتل سے انتقام لے سکوں، اور یہ کہ میں جاننا پسند کروں گا کہ دمشق سے آنے والے پادری مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب تم ان چاروں کو میرے سامنے ایک ساتھ پیش کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ چوبدار ایک بار پھر زمین کی طرف خوب جھکتا ہوا برالیون کو تعظیم پیش کی۔ اس کے بعد وہ محل کے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چوبدار اس کمرے میں 4 اشخاص کو لے کر داخل ہوا اور چاروں کو اس نے برالیون کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے اپنی گردنوں کو خم کرتے ہوئے برالیون کو تعظیم پیش کی۔ پھر قبل اس کے کہ آنے والے چاروں میں سے کوئی برالیون کو مخاطب کرتا، برالیون پہلے ہی بول پڑا، تم یہ بتاؤ کہ تم میں سے دمشق سے آنے والے پادری کون ہے؟ میں پہلے ان دونوں سے گفتگو کرنا پسند کروں گا۔ اس پر ایک شخص بول پڑا، بلفورڈ کے حاکم، میرا نام نیول ہے اور میرے ساتھ یہ میرا ساتھی، اس کا نام نابل ہے۔ ہم دونوں پادری ہیں اور دمشق سے آئے ہیں۔ میرے پاس آنے کے لیے تمہاری کیا غرض اور غایت ہے؟ برالیون نے پادری کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ تفصیل کے ساتھ کہو، کیا تم دمشق سے میرے لیے کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہو؟ اس پادری نے ایک بار پھر اپنے پادری ساتھی کی طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر اس کی نگاہیں ایک طرح سے برالیون پر جم کر رہ گئی تھی۔ بلفورڈ کے حکمران، میں اور میرا ساتھی پادری، ہم دونوں آپ پر ایک بہت بڑا انکشاف کرنا چاہتے ہیں، ایک بہت بڑا راز آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ لوگ یہ بتائیے، کیا کچھ عرصہ قبل بلفورڈ میں کوئی لنگڑا راہب داخل ہوا تھا؟ اس پادری کی اس گفتگو پر لمحے بھر کے لیے برالیون چونک پڑا، پھر جواب دینا شروع کیا۔ دمشق سے آنے والے پادری، تمہارے خدشات درست ہیں۔ کچھ عرصہ قبل واقعی دمشق سے ایک لنگڑا راہب یہاں آیا تھا، لیکن وہ بے مثل اور بلا کا تیغزن اور جنگجو تھا۔ کئی ایک بار مختلف جنگجوؤں سے اس کمرے میں اس کا مقابلہ ہوا،
پر اس نے لمحوں کے اندر سب کو زیر کر کے رکھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس جیسا خونخوار، بے باک اور جنگجو راہب میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ برالیون جب خاموش ہوا تو نیول نام کا پادری کی خدشات بھری ہوئی آواز میں کمرے میں بلند ہوئی۔ بلفورڈ کے حکمران برالیون، میں آپ پر یہ انکشاف کروں کہ وہ لنگڑا بنا ہوا تھا۔ لنگڑا نہیں ہے، نہ وہ راہب تھا نہ پادری، بلکہ وہ مصر کے سلطان رکن الدین کا سالار اول ترنیتائی تھا۔ بس وہ لنگڑے راہب کا بھیس بھرے ہوئے تھا۔ دراصل یہاں سے مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کتابچے لکھ کر دمشق جاتے رہے وہ دمشق میں پکڑے گئے۔ دمشق کے حکمران نے اس کام میں ملوث لوگوں کو تلاش کرنا چاہا پر وہ ناکام رہا۔ اس سلسلے میں اس نے سلطان رکن الدین سے مدد طلب کی۔ رکن الدین نے اپنے سالار ترنیتائی کو بھیجا جس نے تنگ دود کر کے پادریوں کے اس گروہ کو تلاش کر لیا جو دمشق میں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابچے تقسیم کرتے تھے۔ ترنیتائی حرکت میں آیا اور دمشق کے اس اسقف کے علاوہ اس نے اس کے ساتھ کام کرنے والے پادریوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔